So, welcome to the next lecture of electronics engineering. And in the last lecture, we started the next unit, which was our bipolar junction transistors. So, I will just Yes, sir. briefly go through that topic again. So, this has already been discussed. I will simply repeat the working of the transistor. Okay, before that, a few basic things that you have to remember is what are these P, N, and P. Okay, and mute yourself. So transistor is a three-terminal device, and there are three different type of layers connected with each other. Now there is no electrical connection between them; they are not connected with the wire, but they are constructed in such a way that one type of layer is sandwiched between two different type of layers. So N type layer is sandwiched between two P type layers. Similarly, a P type layer can be sandwiched between two N type layers. This type of arrangement will result in PNP transistor, and this type of arrangement will result in NPN transistor. And in general, the width of the N-type layer or the middle layer is very thin as compared to the rest of the layers. The emitter layer is very highly doped, or we can say that the most doping is done in the emitter region. After that, collector is a little less doped as compared to the emitter. And in case of the middle layer, the base is very lightly doped. So based on the level of the doping, we can say that this has high amount of charge carrier, this has little less than the emitter, and this is very less. These are typical dimensions of the different layers that we can have in case of PNP and NPN transistors. We can also see that the level of doping is around 101 if we compare the emitter and the base region. So three different regions, three different layers, three different terminals: emitter, base, collector. The voltage applied between B and E, base and emitter, is known as VEE, and we can sometimes we simply write it as VBE, base to emitter voltage. Similar to the output end, or the other terminal end is collector and base. So we can write here as VCC, and in the coming discussions we will say that we can name it VCB depending upon the configuration we are using. So input voltage, there are two different sides here: base emitter and base collector. There are three different terminals, so obviously one of the terminal will be common, and that will decide our configuration of the transistor. If base is common, we will say that this is a common base configuration transistor. If emitter is common, we will say it is a common emitter. Same way, common collector transistor. Okay, we will apply some input signal in two terminals, and we will observe the output from the other two terminals, taking one of the terminal as common terminal. Now let's see the action of the transistor, how it works. So let's say this is our PNP transistor. This is emitter, base, and collector. Now we have not connected anything in the base to collector terminal. This is just open. Basically, your voltage at collector is 0. But towards the base and emitter region, we have connected this type of supply. So this type of supply results in forward biasing of this particular region. You can see that here positive terminal of the supply is connected to P side of the diode of the P side layer, and N type layer is connected to the negative supply. So this particular region is forward bias. So that's why the depletion region is very thin. This positive side is connected here, so the holes will move towards the N-type material, and electrons will move towards the P-type material. This is simply a case of forward bias diode. There will not be any current flowing through this branch. Okay, we have just forward biased two regions, P
and N, emitter and base. ठीक है. Now same way we will bias the other two terminals, base and collector. In that we will reverse bias that particular terminal. So we will connect positive supply to the N-type material and negative supply to the P-type material, and we will keep the emitter open. There is no voltage connected to the emitter. Now this is a case of reverse biased diode. So there will be current only due to the minority carriers. Okay, so this is positive terminal. This will repel the holes towards this particular region, and this will negative supply will attract the holes from this particular region. The amount of current flowing through this region will be very less. Now, as this is the reverse bias configuration, in that case, we can say that the depletion width will be wider as compared to the previous case. जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर में जो डिप्लेशन विड्थ है वो थिन है, और यहाँ पर जो डिप्लेशन विड्थ है वो वाइड. तो अभी तक हमने दोनों अलग अलग बाइसिंग पे डिस्कस किया है. हमने एक साथ दोनों इनपुट पे, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर इनपुट नहीं लगाई. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट बोथ द सप्लाईज लाइक दिस. तो इसमें हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमने इस तरह से सप्लाई लगाई है, और इस पर्टिकुलर रीजन में इस तरीके से सप्लाई लगाई. हम अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, पोलैरिटी चेंज भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक एक्शन है जिसमें हम ज्यादातर ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करें. ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन था, वो फॉरवर्ड बायस था. तो यहाँ से जो है वो होल्स आपके रिपेल होंगे और इस तरफ उनका मोमेंट होगा. तो पी टाइप मटेरियल में होल्स क्या है आपके, मेजॉरिटी कैरियर. So the amount of current will be high, that is denoted by I. Now these holes will move to this N-type material. Some of them will be combined, some of them will pass through this particular region, and some of them will take this path across the base. Now comes the point of doping levels. अगर हम इस पर्टिकुलर लेयर को भी उतना ही डोप कर देते जितनी हमारी ये वाली लेयर है, तो हमारा जो करंट है वो आगे पास नहीं करता. इसी के अंदर आपके होल्स और उनका कॉम्बिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा हो जाता है. So that's why we have deliberately kept this particular layer very lightly doped. तो उससे क्या होगा, जो होल्स इधर क्रॉस करेंगे उनको कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे. तो वो किस तरफ जाएंगे, some of them will move towards this, and most of them will cross this particular depletion region and will enter this region. इस तरफ क्यों जाएंगे, because negative supply is connected to this particular terminal. So this will attract the holes across this junction. Now जब हमारा रिवर्स बायस केस था तो उसमें हमारे माइनॉरिटी कैरियर के मूवमेंट होता था. नाउ यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ होल्स जो यहाँ पर आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे. कितने ज्यादा, ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स जो यहाँ से इधर पास किए. कुछ परसेंटेज, मैक्सिमम 5% जो आपके होल्स हैं वो इसमें कंबाइन होते हैं, कुछ इधर क्रॉस करते हैं. रेस्ट ऑफ द होल्स विल पास, एंड देन दीज होल्स विल मूव टुवर्ड्स दिस, and this will constitute collector current IC. So number of holes in this particular region जो आ रहे हैं वो almost equal to इसके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि IC will be approximately equal to IE. बट अगर हम बिल्कुल theoretically बात करें, ideally बात करें तो क्या होगा, this current IE will be divided into two parts, collector current and base current, due to the movement of holes into this region as well as a little movement in this particular direction. फिर जब आपके यही होल्स यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो होल्स यहाँ से फिर इधर कंबाइन कर जाएंगे. ऐसे ही जहां से यहाँ से होल्स आएंगे फिर इधर से रिपेल होकर इधर आएंगे. तो जो करंट आपका यहाँ से ब्रेक हुआ था दो पार्ट में, IB और IC, तो इस पॉइंट के बाद फिर से इकट्ठा होके इस तरफ आ जाएगा. तो दैट वे हमारा किरचॉफ करंट लॉ जो है वो भी फॉलो हो जाएगा. So from this we reach to our first equation of the transistor, that is this IE is equal to IC plus IB. No matter what type of configuration we are using in the transistor, हम क्या सप्लाई लगा रहे हैं
वो सब बाद की बातें. But the one thing that will be common through all the configurations will be that your emitter current will always be equal to collector current plus base current. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर आपने कहा था एक दिन कि कलेक्टर विड्थ और एमिटर विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Yes. एक की रेशियो 0.1501 है, उसकी 0.1500 है। सर अगर सेम विड्थ होगी तो मतलब आईबी से करंट नहीं फ्लो होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा वाइड इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, खींचना है सारे के सारे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कलेक्टर. इट इज कलेक्टर ऑफ द कैरियर. तो अगर इसकी विड्थ ज्यादा होती है तो उस केस में वो होल्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली इधर आ जाएंगे. अगर हम सेम रखेंगे तो काम तो हमारा फिर भी वो ट्रांजिस्टर की तरह ही करेगा, बट दी कलेक्टर करंट जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, बेस करंट ज्यादा हो जाएगा. तो हम वो नहीं चाहते. ओके कलेक्टर सर। को कैरियर को कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है. दैट्स व्हाई वी कीप दी कलेक्टर विद लिटिल वाइडर देन दी एमिटर. ठीक है. नाउ this is the first equation that emitter current is equal to collector current plus base current. Now your collector current is consisting of two parts. One is the effect due to this particular biasing, and another is the effect of this biasing when this input biasing is not present. That is, if we keep this circuit open from here, अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें, if we make our emitter open, then this particular region will be the effective region. जो हमारा नेटवर्क कंप्लीट होगा वो इसी रीजन में होगा. Now at this particular time, this PN junction is reverse bias, and there will be very less current flowing in the reverse bias, and that we generally denote as ICO minority. Sometimes हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ICEO या ICBO, जब हमारा कलेक्टर जो है वो एमिटर जो है वो ओपन हो जाए. ठीक है. तो जब कोई कलेक्टर करंट इधर नहीं होगा तो उसमें हमारा ये वाला करंट फ्लो करेगा, एंड अमाउंट ऑफ दिस करंट इज वेरी लेस. जनरली दिस इज इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर. जैसा डायोड में होता है रिवर्स बायस में, माइक्रो एम्पियर में हमारा करंट होता है. और दिस इज आईसी मेजॉरिटी. दिस इज व्हेन वी हैव अप्लाइड दिस पर्टिकुलर बायसिंग इन द एमिटर एंड बेस रीजन. इसकी जो रेंज होती है वो हमारी होती है मिली एम्पियर. ठीक है. तो हमारा ओवरऑल जो आईसी होती है वो होता है मिली एम्पियर्स में. तो हमारा आईई की जो रेंज है वो भी मिली एम्पियर्स में ही होती है. बेस करंट इज वेरी लेस, around 5% of the emitter current, and it is also in the range of microamp. Okay, so these are two equations that we have to keep in mind for now. Emitter current equal to collector plus base current, and collector current consists of two parts: IC minority, IC majority. IC minority current generally flows when there is no input, no supply between base and emitter, and IC majority flows when there is VEE is present in the circuit. ठीक है. so this is the action how the transistor works. अगर आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए NPNP को NPN से, so there will not be any difference in the explanation of the action if we simply replace electrons with holes and holes with electrons in your explanation. ठीक है. उसमें सप्लाई यहाँ पे भी आपकी रिवर्स हो जाएगी, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा. देन सिंपली जहाँ पे होल्स लिखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कर दो, इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स कर दो. रेस्ट ऑफ द एक्शन इज सिमिलर. आपकी करंट की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएंगी. IE विल बी इन दिस डायरेक्शन, IC विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड बेस विल बी इन दिस डायरेक्शन. So now base and collector current again will combine to form emitter.
ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सिंबल, हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए ट्रांजिस्टर इन द नेटवर्क। तो उसके लिए हम एक सर्कल का यूज करते हैं। उस सर्कल में एमिटर, कलेक्टर और बेस, एंड हाउ डू वी डिसाइड, दैट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन। जिस लाइन में आपकी एरो होगा दैट विल बी डिनोटेड एज एमिटर। ये एरो आपको इस तरफ भी पॉइंट कर सकता है, ऊपर की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों के बीच में कॉमन होगा दैट विल बी बेस एंड द रिमेनिंग वन विल बी कलेक्टर। There will not be any direct connection between this arrow and this arrow. Similarly, there will not be any direct connection between this arrow and this arrow. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो गैप है बीच में ये आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो दिस इज एन पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस डायरेक्शन को ध्यान रखने के लिए कैसे कर सकते हो, इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम पी टू एन। ठीक है, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर डिजाइन करेंगे, उसका सिंबल बनाएंगे तो आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले बेस बनाओ, उसके बाद दो एरोज लिखिए, एन पी एन। ये आपका हो जाएगा एमीटर, ये आपका हो जाएगा कलेक्टर। एमीटर में आपको एरो लगाना है एंड इट विल बी पॉइंटेड फ्रॉम पी टू एन। तो ये आपकी डायरेक्शन जो एरो है वो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ये ध्यान रखना है, ये वाला जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बार बार आप गलती कर दोगे। जो ये गैप है ये होना चाहिए आपका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट डिस्कशन विच इज आवर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जिस कॉन्फ़िगरेशन से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी वो कॉमन बेस ही थी। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है, फॉरवर्ड बायस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिवर्स बायस की एक होती है। तो उस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनपुट लेते हैं क्या, वीडी, और आउट और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं आईडी। तो वीडी और आईडी का रिलेशनशिप हम दिखाते हैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में। एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस की होती है। ऐसे ही इसमें भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज इट इज कॉमन बेस। हमारा बेस कॉमन है तो बेस हमारा यहाँ पे भी कॉमन है। उसके बाद हमने एमिटर टू बेस रीजन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। ठीक है, और कलेक्टर टू बेस रीजन को रिवर्स बायस किया हुआ है। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं बट दैट विल चेंज ऑल्सो द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट वी विल सी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, so this is one characteristics of the transistor. Generally there are two characteristics just like diode. One characteristics is your input parameters, that is driving point characteristics in transistor. इस characteristics में क्या होगा, we will make a plot between IE and VBE. So your IE is not an output current, it is an emitter current, क्योंकि हम emitter की तरफ हमारा ये वाला रीजन है। We will apply some voltage right here between base and emitter. तो जो हमारा emitter current flow करेगा उस emitter current में और इनपुट वोल्टेज हमारे जो है VBE, बेस और emitter के बीच में जो वोल्टेज है उसके बीच में हमारा रिलेशनशिप दिखाया जाएगा फॉर दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें हमारी एक चीज फिक्स क्या रहेगी, फॉर जो हम रेफरेंस ले लेंगे दैट विल बी फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCB. So the VCB, this voltage will also be changed from time to time. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेकेंड,
ठीक है, हम VCB की वैल्यू कुछ वैल्यू लेंगे, सपोज हमने 1 वोल्ट लिया, उसके बाद हम VBE को वेरी कराएंगे एंड वी विल चेक द वैल्यू ऑफ करंट IE। तो जो हमारा यहाँ पे है ये देखिए, VCB की वैल्यू हमने 1 वोल्ट ली, तो दिस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है इसमें आपके VCB फिक्स था 1 वोल्ट। आफ्टर फिक्सिंग द collector to base voltage, we will change the base to emitter voltage on this axis. You can say in starting it was 0, then 0.1, 0.2, and so on. And we will measure the current, emitter current I. So whatever we are plotting, that is on the input side of the network. So that's why we say it as input parameters relationship characteristic. It is a relationship between IE and VBE for various values of VCB। तो स्टार्टिंग में हमने VCB की वैल्यू 1 वोल्ट रखी, उस टाइम पे हमने इनकी वैल्यू चेक की, फिर हमने इनकी वैल्यू को 2 वोल्ट किया VCB को, फिर वी चेंज द वैल्यू ऑफ VBE फ्रॉम 0 टू सो ऑन एंड मेजर द वैल्यू ऑफ I। तो ऐसे ही हमने जैसे यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हुई हैं, फ्रॉम 1 वोल्ट, देन एट 10 वोल्ट एंड एट 20 वोल्ट। So we can see that this type of characteristics is similar to the forward bias region of the diode. As we increase the VBE voltage, the IE voltage in the beginning is very less, and after a point IE increases rapidly. तो इसमें भी आपका जो IE है वो ध्यान से देखिए 0.7 के आसपास से ज्यादा जल्द एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है when your VBE is greater than or equal to 0.7 volt. Then emitter current increases rapidly. ठीक है, इफेक्ट ऑफ VCB इज दैट अगर हम VCB की वैल्यू 1 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट कर देते हैं, तो दैट रैपिडनेस इन द चेंज ऑफ द एमिटर करंट नाउ इंक्रीजेस फर्दर। तो यहाँ पे आपका स्लोप जो था वो ये वाला था 1 वोल्ट पे, उसको 10 वोल्ट कर दिया तो वो और फास्ट तरीके से और ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। 20 वोल्ट कर दिया तो और ज्यादा शार्पली इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दी होल्स that were crossing this particular junction emitter to base junction, अगर हम यहाँ पे सप्लाई बढ़ा देंगे then this polarity will attract those very rapidly, उनको जल्दी से फटाफट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो वो एमिटर करंट जो है वो जल्दी आपका बढ़ जाता है। करेक्टर बिकम्स मोर इफेक्टिव इफ वी इंक्रीज इट बायसिंग वोल्टेज VCB। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है सिमिलर टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, क्योंकि ये 3 टर्मिनल है तो इसमें हमारा एक थर्ड पैरामीटर आ जाता है करेक्टर टू बेस। और इसकी इफेक्ट क्या होता है, द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीज द करेक्टर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, एनीवन एनी डाउट इन दिस? Hello, yes, sir. I have a doubt. हाँ बताओ, पूछो। Sir, I want to know that where we can find the previous videos. नहीं, वो तो आपकी एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है उस पे भी अवेलेबल है, और एक आपकी कोर्स कंटेंट पे भी अवेलेबल है। Okay, sir. What's the name of that channel? I will share the link after this class. आपके ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है। कौन से ग्रुप से हैं आप? केमिकल। तो मैं एक बार इस यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, so this is one type of characteristics between input parameters. Now let's move on to the second one. So this is characteristics on the output side, and here we will have a relation between IC and VCB, जो हमारा करेक्टर में करंट फ्लो करेगा, and we will
and do this by changing the value of VCB. लेकिन 3 टर्मिनल है तो हमें एक चीज और कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने क्या डिसाइड किया है, आई। तो आई ई की एक वैल्यू जो है उसको हम फिक्स रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ VCB ऑन कलेक्टर करंट, वो हमारे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऑन दिस एक्सिस वी हैव VCB, दिस इज VCB एंड दिस इज IC। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कर्व है उसी को देखते हैं, IE इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। So if IE is equal to 0 milliampere, then simply means there is no input supply in this particular region. तो इसमें अगर कुछ भी नहीं है, that is the only explanation कि हमारा एमिटर करंट जो है वो 0 है। तो उस केस में फिर ये वाला किस तरीके से काम करेगा, एक रिवर्स बायस डायोड की तरह हमारा काम, ठीक है। कोई VCB को आप कितना भी इंक्रीज कर लो, द अमाउंट ऑफ करंट दैट विल बी फ्लोइंग दैट विल बी वेरी लेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यूनिट है वो मिली एम्पियर में है, और रिवर्स बायस में हमारा करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा माइक्रो एम्पियर में। दैट्स व्हाई वी सी दिस एक्सिस and this line, this curve on the x-axis itself. There will not be any current in the collector, that is IC is equal to 0 if we are increasing VCB based on the condition that emitter current is 0. आप एक बात को और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक्सिस है आपकी, जीरो एक्सिस जो है y का वो ये वाला है, इससे पीछे आप देखोगे तो ये नेगेटिव वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो रिवर्स बायस में आपका थोड़ा सा करंट है वो इस तरफ में दिखाई दे रहा है, बाकी में आपका कट ऑफ रीजन, बाकी जो में आपका करंट जो है वो 0 है, ठीक है। नाउ लेट्स इंक्रीज द एमिटर करंट टू 1 मिली एम्पियर। जब हम 1 मिली एम्पियर पे करते हैं, देन वी सी दैट द करंट in the collector increases rapidly if we increase the voltage of VCB, and after a point it becomes constant, saturated. एक बार आपका यहां से लेके यहां तक बढ़ता है रैपिडली और उसके बाद सैचुरेशन पे चला जाता है। सिमिलर बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड अगर हम IE की वैल्यू 2 मिली एम्पियर लेते हैं, कि आपका करंट जो है कलेक्टर करंट वो रैपिडली बढ़ता है और फिर सैचुरेट हो जाता है, बट दिस टाइम सैचुरेटेड वैल्यू इज हायर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सेम बिहेवियर आपका तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में है यहाँ पे। नाउ यू लुक एट दीज वैल्यूज, व्हेन योर IE is 1 milliampere, then your collector current becomes saturate around 1 milliampere. If it is 3 milliampere, then your collector current is near about 3 milliampere. So this leads to the first equation जो हमने याद लिखा था, your IE was equal to IC plus IB, and in these characteristics we can say that IE is nearly equal to IC. आप यहाँ से characteristics कर्व से भी देख सकते हैं। And this particular region in which your current is almost constant, collector current, and is almost equal to the emitter region is known as active region. Because in this particular type of region में हम ज्यादातर अपने ट्रांजिस्टर को रखना चाहते हैं, ज्यादातर एप्लीकेशन जो है वो हमारे एक्टिव रीजन में रहती है, हम इसमें अपने ट्रांजिस्टर को काम करवाते हैं। एक्टिव रीजन में क्या होगा, आई कलेक्टर करंट विल remain equal to emitter current no matter we keep on increasing the collector to base voltage. आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 5 रखो तो भी उतना ही है, 10 रखो तो भी उतना ही है, 15 रखो तो भी उतना ही। ओनली वन थिंग, वन कंक्लूजन जो हमारे यहाँ से निकलता है वो है कि कलेक्टर करंट जो है वो एमिटर करंट के बराबर पहुंच रहा है, सैचुरेट हो रहा है। दिस इज द एक्टिव रीजन। और इस रीजन में हमारा क्या होता है, योर एमिटर एंड बेस रीजन इज फॉरवर्ड बायस।
और कलेक्टर टू बेस जो रीजन है वो आपका रिवर्स बायस होता है। जब ये बायसिंग होगी उस टाइम पे आप इनके बीच में रिलेशनशिप देखोगे आईसी और वीसीबी में, तो आपको इस तरीके से दिखाई। अगर आपने इनमें से कुछ भी चेंज कर दिया तो इसका ये रीजन भी चेंज हो जाएगा, वो हम अभी देखेंगे कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर एक्टिव रीजन। नाउ अब आप कट ऑफ रीजन में देखिए जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, कट ऑफ रीजन में क्या हो रहा है, देयर इज नो एमिटर करंट। अगर हमारा यही 0 मिली एम्पियर के लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके नीचे भी जो है वो हमारा कोई करंट एमिटर में फ्लो नहीं कर रहा है। व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द एमिटर, तो उस केस में वीसीबी को बढ़ाते रहो आप, कलेक्टर करंट भी आपका 0 ही रह रहा है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज कट ऑफ रीजन। तो आपको ट्रांजिस्टर को कट ऑफ करना है, सिंपली मेक द एमिटर करंट 0। एमिटर करंट को 0 कैसे बना सकते हो आप, इस पर्टिकुलर रीजन को भी हम अगर रिवर्स बायस कर दें तो एमिटर करंट आपका 0 हो जाएगा। ये भी रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में रहेगा। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। वीसीबी को इंक्रीज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज soon as this condition is satisfied that your IE is 0। फिर हमारा तीसरा एक केस आता है, आप यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में। इस पर्टिकुलर रीजन में आप वीसीबी की वैल्यू देखिए, वो नेगेटिव है। अगर वीसीबी की वैल्यू पॉजिटिव होने पे हमारा रिवर्स बायस हो रहा था ये वाला रीजन, तो वीसीबी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये वाला जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, और इसमें हमारे एक एमिटर करंट की भी एक वैल्यू है, तो दैट मीन्स आपका एमिटर भी फॉरवर्ड बायस है। जब दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, उस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, द करंट इन द कलेक्टर इज चेंजिंग वेरी रैपिडली इफ इंक्रीज द वीसीबी। ठीक है, जैसे जैसे हम वीसीबी को 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, नेगेटिव से 0 की तरफ, यहां से, उस टाइम पे आपका कलेक्टर करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इफ वी इंक्रीज दी एमिटर करंट, अगर एमिटर करंट हमने 1 मिली एम्पियर किया तो वो इतना बढ़ के रुक जाता है। अगर 2 मिली एम्पियर किया तो और रैपिडली बढ़ता है, 3 मिली एम्पियर किया तो और रैपिडली बढ़ता है। नाउ लेट्स ट्राई टू connect all these three regions. We will start from this particular point. जब हमारा कट ऑफ रीजन में है, let me clear this all of these drawings. ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा वीसीबी को जो है हम अगर नेगेटिव रखते हैं, हम नेगेटिव लेके ही चलते हैं। ठीक है, वीसीबी हमारी स्टार्टिंग में इस तरीके से है कि ये वाला रीजन फॉरवर्ड बायस है। तो जैसे जैसे हम आईई को भी 0 से कम रखेंगे तो वो हमारा कट ऑफ रीजन है, वो तो काम ही नहीं करेगा। इनपुट पे कुछ भी नहीं है और आउटपुट को फॉरवर्ड बायस करते रहो तो वो फिर आपका काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इनपुट के साथ आउटपुट के साथ इनपुट को भी फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारे ये वाली स्ट्रिप बनती है सैचुरेशन रीजन। वीसीबी को धीरे धीरे बढ़ाओ तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन की तरफ जाने लगेगा। ये देखिए यहाँ से एकदम से सैचुरेट हो जाएगा। जैसे ही 0 के आसपास में आया, कलेक्टर करंट विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 5 मिली एम्पीयर। ठीक है, और जैसे ही आपकी वीसीबी 0 को क्रॉस करता है उस टाइम पे आप एमिटर करंट को बढ़ाते रहो। कलेक्टर करंट विल ऑलवेज बी नियरली इक्वल टू एमिटर करंट। टू 1 मिली एम्पीयर किया तो कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पीयर बन जाएगा, 4 मिली एम्पीयर किया तो 4 मिली एम्पीयर कर जाएगा। उसके बाद 0 के बाद आप
जीरो से थोड़ा सा आगे जाने के बाद, इस पॉइंट के बाद आप देखोगे, अब वीसीबी को बढ़ाते रहो, कलेक्टर करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक उसी तरह कट ऑफ रीजन में क्या है, एमीटर को आप जीरो से कम कर दीजिए, करंट को, एमीटर को जीरो से कम कर दिया, पीसीबी को बढ़ाते रहो, देयर विल नॉट बी एनी करंट flowing through the transistor collector. So these are three different regions in the transistor characteristics curve. These three regions will always be there in different configuration. This is for common base, then we will have for common collector, for common emitter. ठीक है, किस region में है, that we can also decide by looking at the polarity of the biasings of the transistor. So in active region, your collector base junction is reverse bias, base emitter junction is forward bias. In cutoff region, both of them are reverse bias, and in saturation region, both of them are forward bias. ठीक है, so you have to remember this. अगर आपको कोई भी नेटवर्क दिया हुआ है, आप VCB और VEB की पोलैरिटीज देख लीजिए, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन से पर्टिकुलर रीजन में काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि IC जो है वो नियरली इक्वल टू एमिटर करंट होता है, IE, बट नियरली इक्वल टू होता है, इट इज नॉट exactly equal to the IE, and the ratio of collector current and emitter current is given by alpha DC. If we are not applying any AC signal, if we are operating only on the DC signals, so the ratio of collector current to the emitter current is denoted by a parameter known as alpha DC. तो हमें पता है कि IC की वैल्यू जो है वो IC की बिल्कुल नियर अबाउट रहती है, तो इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है 0.9 से लेके 0.98 या 99. These are the typical range in which alpha DC can have its value, 0.9 से 0.98. बिल्कुल आइडियली मान लो बेस करंट को जीरो ही मान लोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम अल्फा। हमें जो इक्वेशन होती है हमारी IC, उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ से नहीं, आप यहीं से लिख लीजिए कि IC को अगर आप IE के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, IC इज इक्वल टू alpha times IE. Now this ratio is only for the majority carrier. उसके बाद हमारा एक और करंट होता है कलेक्टर में, जब एमिटर हमारा जीरो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ICBO, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। इसको ऐसे रीड करते हैं, ICB, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन, जो हमने पीछे ICO से भी डिनोट किया था। तो इस इक्वेशन में अगर आप IE की जगह जीरो रख दोगे तो ये वाला पैरामीटर आपका हट जाएगा, फिर कलेक्टर करंट विल इक्वल टू ICBO, जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है कलेक्टर बेस रीजन में। तो सिंपली इसी फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन पे आए हैं। तो अगर आपको IC निकालना है फ्रॉम IE, यू कैन दिस फैक्टर विल बी गिवन एंड यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IC। फिर आप ICBO भी आपको दिया होगा तो वो उसमें ऐड करके आप टोटल करंट भी निकाल सकते हो। ये आपका माइक्रो एम्पियर में होता है तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इट इज ओनली इफेक्टिव व्हेन वी हैव टेम्परेचर सेंसिटिविटी इन द नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, अल्फा DC एंड IC। इसी इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन बना है। पहले हमने IC की वैल्यू निकाली, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर that will be equal to alpha times IE plus collector current due to minority carriers that will be collector to base in the emitter is open.
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डीसी के लिए। एसी के लिए हमारा सिंपली चेंज हो एक चीज हो जाती है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कलेक्टर एंड एमिटर वी विल से रेशियो ऑफ change in collector current and change in emitter current, keeping this value constant। जैसा हमारा एसी डायनेमिक रेजिस्टेंस होता था डायोड में, ये वैसा ही कुछ फॉर्मूला है, अल्फा रेशियो ऑफ कलेक्टर टू एमिटर करंट, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर एग्जैक्ट वैल्यूज वी विल बी टेकिंग देयर चेंजेस इन दोस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको तब तक क्या करना है, go through the videos or go through the textbook and please try to understand the action of the transistor and its characteristics curve in common base configuration। उसमें कोई डाउट सर होता है? टाइम हो गया क्लास का। हाँ, फर्स्ट आई विल टेक दी डाउट्स ओनली देन आई विल मूव। थैंक यू सर।